ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ 10th ਮੈਥ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਨੋਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਫਸਟ ਨੋਟ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਓਰਮ ਆਫ ਅਰਥਮੈਟਿਕ। every composite number can be expressed या factorized as a product of primes। यानी कि कोई भी composite number है ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਫੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਥੀਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਆਰ ਯੂਨੀਕ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਯੂਨੀਕ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਦੀਅਰ ਆਰਡਰ ਮੇ ਬੀ ਚੇਂਜ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 10। ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ 2 into 5। ਯੂਨੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ 10 ਦੇ ਫੈਕਟਰ 2 × 5। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਲਿਖ ਦੇ 2 into 3 = 10। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਗਲਤ। ਜਾਂ 7 into 3 = 10 ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ। ਮਤਲਬ 10 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਜੇ ਮੈਂ 2 ਤੇ 5 ਦੋ ਬਣਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ 'ਚ 2 ਤੇ 5 ਹੀ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ 2 ਅੱਗੇ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 5 ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨੋਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦਾ HCF ਅਤੇ LCM ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। HCF ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ, LCM ਲੀਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੈਪਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਿਵਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਈਚ ਨੰਬਰ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਇਟਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ। ਕੁਛ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਆਓ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 140 ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ, ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ 0 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। 5 ਦਾ ਟੇਬਲ 1 ਥੱਲੇ ਪੜੋ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ 0 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ 14 ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 5 ਦਾ ਟੇਬਲ। 5 2 = 10, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਜੀ 4, ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ 0, 40। 5 8 are 40। ਹੁਣ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ 0 ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ 28। 7 4 = 28, 2 2 = 4 ਅਤੇ 2 1 = 2। ਯਾਨੀ ਕਿ 140 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 × 2 ਆ ਰਿਹਾ 5 ਅਤੇ 7। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਔਰ ਐਨੀ ਆਰਡਰ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5 ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ 140 = 2 × 2 × 5 × 7। 2 2 ਟਾਈਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2^2 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 156 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3825 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। 5005 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਿਪੀਕਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 143 11 ਜਾਂ 13 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 7429 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਆ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ LCM ਅਤੇ HCF ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ LCM ਅਤੇ HCF ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਟਿਪੀਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 336 ਅਤੇ 54 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ 336 ਅਤੇ 54। ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਈਏ। 336 1 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 6, ਇਹ 2 'ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 8 are 16, 2 8 are 16, 2 4 are 8, again 2 4 are 8, 2 2 are 4,
2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 7s are 21 and 7 1s are 7। यानी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं लिख सकदा 2 आया जी मेरे को 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 ते 7, 3 इंटू 7, यानी कि 2 दी पावर 4, 3 दी पावर 1, 7 दी पावर 1। डिटो सेम 54 ਦੇ फैक्टर भी बना लेना जी मैं नाल ही। ये जाएगा जी 2 ਦੇ टेबल ते या 3 ते। 3 18s are 54, 3 6 are 18 ते 3 2s are 6 ते 2 1s are 2, यानी कि मेरे को 2 3 टाइम्स 3 आ गया, 2 ਦੀ पावर 1, 3 ਦੀ पावर 3। हुण मैनू चाहिए जी HCF लिखन लग्या सिर्फ कॉमन फैक्टर यूज़ करने हैं जी। इस ते देखिए कौन कौन आए है। एक तो 2 आ रहा जी, एक 3 आ रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 आंसर आ चुके हैं। मीनस टू से जो HCF फाइंड आउट करना है बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स इन दियर स्मॉल पावर्स, मतलब इदा भी याद रखा जा सकता है। देखो जे ये डायरैक्ट देखना चाहो तो इत्थे 2 ते 3 कॉमन फैक्टर है, मैं दोनों रिपीट कर ली। पावर 4 ते 1 है, स्मॉल पावर 1 है, पावर 1 ते 3 है, स्मॉल 1 है। तो इत्थे लिख भी सकते हो तुसी बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स इन दियर स्मॉल पावर्स। इस तरीके नाल जदों तुसी LCM फाइंड आउट करना है सारे फैक्टर लो। जिस तरह फर्स्ट फैक्टर है जी 2, उस तो बाद 3, उस तो बाद 7। 2 आ चुके हैं, रिपीट नहीं करना। 3 आ चुके हैं, रिपीट नहीं करना। हुण इन्हां दोनों दे विचों वड्डी पावर है जी 4, 2 रेज़ टू पावर 4। 3 दी वड्डी पावर है जी 3, 7 दी पावर 1 ही है। 2 दी पावर 4 मीन्स टू से 1 2 3 4 टाइम्स 2 रिपीट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। 3 दी पावर 3 यानी कि 3 टाइम्स 3 ते नाल 7 मल्टीप्लाई। ये तुसी मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा 3024। इत्थे लिख दिए बाय टेकिंग all the factors in their largest powers। LCM है तो लार्जेस्ट पावर्स लैनियां होंदियां, HCF है तो स्मॉलेस्ट पावर लैनियां होंदियां। हुण तुहानूं HCF ते LCM का आंसर मिल चुकिया। आओ इन्हां दी वेरीफिकेशन भी करके देखिए। वेरीफिकेशन लई सब तो पहला LCM ते HCF का प्रोडक्ट लो। LCM है जी 3024, HCF है 6। इन्हां दी प्रोडक्ट लैके देखियो जी तो आ जाएगा 18144। उस तरीके नाल फर्स्ट नंबर ते सैकेंड नंबर का मल्टीप्लाई करके देखो जी। तो फर्स्ट नंबर है जी 336 ते सैकेंड नंबर है जी 54। आंसर डिटो सेम आएगा जी। देयरफॉर LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। आंसर नू चैक करने भी ये मैथड काम करता है। जे दोनों पार्ट्स थोड़े इक्वल आ गए तो तुसी HCF ते LCM सही फाइंड आउट किया है। जे अलग अलग आए हैं दोनों पार्ट्स नॉट इक्वल है तो थोड़ा आंसर कितने गलत है। बाकी पार्ट्स ये खुद तुसी आप ट्राई करने हैं। आओ हुण आपां थर्ड क्वेश्चन करते हैं। LCM ते HCF फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड दे नाल। फर्क की है जी, हुण सानू 3 नंबर्स दिते हुए हैं। आओ ट्राई करिए। तो साडा फर्स्ट पार्ट है जी थर्ड दा 12, 15 ते 21।
अच्छा जी 12 ਦੇ फैक्टर तो बिल्कुल ईजी है 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 2 रेज़ टू पावर 2 3 रेज़ टू पावर 1 15 ਦੇ भी ईजी है 3 5 are 15 3 ਦੀ पावर 1 5 ਦੀ पावर 1 21 ਦੇ भी 3 इंटू 7 3 रेज़ टू पावर 1 इंटू 7 रेज़ टू पावर 1 डिटो सेम जे तुसी लभना जी HCF ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ जस्ट ਇਹਨਾਂ ਦਾ कॉमन फैक्टर ਤੁਹਾਡਾ आंसर आएगा होर कोई भी कॉमन नहीं है तुसी इस तरह भी लिख सकते हो बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स इन दियर स्मॉलेस्ट पावर एक्सपोनेंट लिख लो या पावर लिख लो इको गल है और नोट करो जी 3 दी पावर स्मॉलेस्ट 1 ही सी तो 3 रेज़ टू पावर 1 3 ही रहेगा तो HCF आ गया LCM फाइंड आउट करना है फिर की करना है जी सारे फैक्टर लिखो फर्स्ट फैक्टर 2 दैन 3 आ चुके हैं 5 लिखो अगेन 3 आ चुके हैं 7 लिखो लार्जेस्ट पावर इत्थे 2 दी पावर 2 है होर किते 2 आया नहीं तो सब तो वड्डी पावर 2 दी 2 3 दी पावर हर एक जगह ते 1 है 5 दी पावर भी 1 है 7 दी पावर भी 1 है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ 2 इंटू 2 3 इंटू 5 इंटू 7 इज़ इक्वल टू 420 ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ बाय टेकिंग all the factors in their largest exponents लो जी असी ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ 17 23 ਤੇ 29 क्योंकि ਤਿੰਨੇ प्राइम नंबर है वैसे तो असी फैक्टराइजेशन करन लगे 1 नाल मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाते क्योंकि ज़रूरत नहीं होंदी पर हुण इत्थे साडे कोल होर कोई ऑप्शन नहीं है तो तुसी प्राइम फैक्टराइजेशन दे विच 1 लिखना चाहो तां भी ठीक है नहीं लिखना चाहो इस केस तुहाडा HCF 1 आएगा क्योंकि कोई चीज़ कॉमन इन्हां विच नहीं है तो इन्हां दे प्राइम फैक्टरां दे विच जस्ट 1 नाल मल्टीप्लाई करके लिख लिया मैं तो LCM वाले केस के भी देखो जी कोई चीज़ कॉमन नहीं है बस ये लाइन जरूर लिख देनी है बाय टेकिंग ऑल द फैक्टर्स इन दियर लार्जेस्ट एक्सपोनेंट 17 23 ते 29 तिनों का प्रोडक्ट ले होंगे तो तुहाडा आंसर आ जाना 11,339 आंसर तैयार है। फोर्थ क्वेश्चन है साढ़े को 306 ते 657 का HCF देता जी 9 इन्हां दा LCM फाइंड आउट करनों किया गया आओ करके देखिए आप मैनू फार्मूला याद है कि LCM इंटू HCF फर्स्ट नंबर ते सैकेंड नंबर दे प्रोडक्ट दे इक्वल है हुण आपां नूं HCF गिवन है LCM नहीं पता नंबर दिता जी पहला 306 दूसरा जी 657 तो 9 लैफ्ट साइड ते मल्टीप्लाई है राइट साइड ते जाके हो जाएगा जी डिवाइड 9 1 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 3 कैरी करके 3 ते 6 9 4 ज़ा 36 तो जी 34 ते 657 दी मल्टीप्लाई करोगे 22,338 तुहानू आंसर मिल जाएगा जी। हुण आपां इहदे नाल ही 5th क्वेश्चन सॉल्व करन लगे हैं जी आओ देखिए चेक वैदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नैचुरल नंबर n यानी कि 6 की पावर दे विच n है तो n कोई भी नैचुरल नंबर है वो कहता जी ये 0 ते एंड हो सकता है क्वेश्चन च कहने का मतलब है उन्होंने जिवें फर्स्ट नैचुरल नंबर 1 है आंसर आ गया जी 6 raised to power 1 6 नैक्सट नैचुरल नंबर 2 6 का स्क्वेयर 36 6 का क्यूब 216 अप टू सो ऑन वो कहता लास्ट के उत्ते जिवें इत्थे 6 बच रहा इत्थे भी 6 बच रहा इत्थे भी 6 बच रहा कि किसी तरीके नाल 0 बच सकता है आओ चेक करते हैं तो सब तो पहला असीं की करांगे जी
6 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 6 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n 2 × 3 ਦੋ ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ। 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n 3 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n। ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਈਏ ਨਾਓ 6 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n can end with 0 if a 6 raised to power n ਇਹਦਾ यूनिट डिजिट 0 ਤਾਈਓ ਆਵੇਗਾ ਜੇ 2 ਜਾਂ 5 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਵੇ। if it is divisible by both 2 and 5 ਪਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ 5 ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਦੀ ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇਟਸ ਪ੍ਰਾਈਮ factorization doesn't contain 5, therefore it can't end with 0। ਲਓ ਜੀ ਅਗਲਾ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦਰ ਥੀਸ ਆਰ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਫੈਕਟਰ ਹੋਣ। ਜੇ 2 ਫੈਕਟਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 6th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ 7 × 11 × 13 + 13 ਬ੍ਰੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋਨੇ ਟਰਮਸ 'ਚ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਲਓ। 7 × 11 ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਲੱਸ 13 1s are 13 13 11 × 7 ਆ ਗਿਆ ਜੀ 77 ਪਲੱਸ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 78। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਟਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ। ਦੇਖੋ 1 ਤੇ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, 13 ਤੇ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਤੇ 8 ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 78 2 ਤੇ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਜੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ therefore it is composite। 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਕਟਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋ एक कंपोजिट नंबर हो गया जी आंसर। 7th क्वेश्चन है जी देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक खेडां दा ग्राउंड है जी, ਉਹਦੇ आसे पासे सर्कुलर रस्ता बनया होया पाथ रस्ता। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। एक लड़की सोनिया 18 मिनटां दे विच एक राउंड उसका पूरा कर दिंदी है ते लड़का रवि है वो 12 मिनटां विच राउंड पूरा कर दिंदा है। सपोज करो दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। दोने सेम पॉइंट तो स्टार्ट करते हैं यानी कि इको पोजीशन तो सेम टाइम तो स्टार्ट करते हैं तो डायरैक्शन भी उन्होंने सेम है, सेम डायरैक्शन जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। दसो जी किन्ने मिनटां बाद वो सेम स्टार्टिंग पॉइंट के उत्ते मिलणगे। बहुत ईजी जा काम है। सपोज करो सोनिया ते रवि दो जने ग्राउंड का चक्कर लगा रही है। सोनिया ने पहला चक्कर पूरा किया जी 18 मिनट्स, रवि ने 12 मिनट्स। दूसरा चक्कर सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे आई सोनिया 36 मिनटां बाद, रवि आया जी 24 मिनटां बाद। तीसरा 54 मिनटां बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे सोनिया पहुंची है, रवि पहुंचे जी 36 मिनटां बाद। आ थोड़ा नोट करो जी। तो सब तो पहला वो 36 मिनट के विच इकट्ठे हो गए है। इस तरीके नाल इहदा टेबल कंटीन्यू चलता जाएगा जी, इहदा टेबल कंटीन्यू चलता जाएगा। वो अगे भी जाके फिर एक स्टार्टिंग पॉइंट ते किसी टाइम ते इकट्ठे हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि सपोज करो तुसी किसी दोस्त के नाल बाजार घूमन गए हो या बगीचे सैर करन गए हो। मान लो सुबह सुबह तुहानूं 6:30 पहला एक पॉइंट ते तुसी मिले
तो एक राउंड पूरा कर लिया या 2 राउंड पूरे कर लिए, फिर 7:15 फिर उसनों मुलाकात हुई तुहाडी उस पॉइंट ते, फिर 8 वजे फिर मुलाकात हुई, 8:30 फिर मुलाकात हुई, तो तुसीं अपने घर जाके किहड़ा टाइम दसोगे? तुसीं ये कहोगे ना भी सुबह वो 6:30 ही मैंने सवेरे ही मुलाकात होगी मेरी उस नाल, या सारे टाइम दसोगे कि पहला सुबह 6:30 मुलाकात हुई, फिर 7:15 मुलाकात हुई, फिर 8 वजे मुलाकात हुई, फिर 8:30 मुलाकात हुई? ਆਪਾਂ सब तो पहला घट वाला टाइम दसदे हुंदे आ। घट वाला यानी कि लीस्ट जिहड़ा घट्टो घट होवे कम से कम, तो सानू इत्थे LCM फाइंड आउट करके देना पेगा। आओ क्वेश्चन असीं लिखदे आ, ये रफ कम है। टाइम टेकन बाय सोनिया टू कवर 1 राउंड 18 मिनट्स गिवन है जी। टाइम टेकन बाय रवि टू कवर 1 राउंड, ये भी 12 मिनट्स तुहानू गिवन है। क्वेश्चन दे विचों देख के लाइनां लिख दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, डिटो सेम। देयरफॉर दे अगेन मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कदों? LCM 18 ते 12 का। 18 का LCM आएगा जी 2 × 3 × 3, पहला ये प्राइम फैक्टर मैनू बनाने पैणगे। 12 के भी प्राइम फैक्टर बन गए 2⁻2 × 3 by taking all the prime factors in their largest exponent। तो सब तो पहला मैनू फैक्टर मिले जी इन्हां चों 2 अगेन 3, LCM आप फाइंड आउट करने का ढंग जानते हैं जी, पावर 2 तो पावर 2, 2 × 2 3 × 3, ये आ गया जी 36। इस करके 36 मिनट्स बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट ते मीट कर जाएंगे। वो मर्जी है उन्हों की बई बाद दे विच भावें दोबारा अलग अलग टाइम्स के उत्ते वो इकट्ठे होंदे रहन, जिवें इस तो बाद वो 72 मिनटां बाद टाइम के उत्ते सेम टाइम के उत्ते मिलणगे। इस तरह क्वेश्चन कंटिन्यू होएगा। थैंक यू।